Yes, good morning, dear students. Today is our third lecture of IGNO for BAG. As you know that whatever I am teaching you, I make it is video and I upload that upon the YouTube. You can watch this also upon the YouTube. Don't worry for that. But I always says you that please make two-way communication. Whatever I will teach you, please reply. Yes. Today we will start your block number one. As in the last two lectures, I have taught you the basic about the language, what is language in the first lecture. And in the second lecture, I have taught you the tennis. And today we will start the communication. That is the first block of your course. That is about the communication. Yes, this is the slide visible to you? Hello. Is the slide visible? One second. Okay. I will make it visible to you. Is now visible? Is now screen visible? Hello. Okay. This is the block first of your course. That is BEGAE 182 English Communication Skills. If you have the material, that is good. If you have not, I will send in your group. That is what is a group. I will send my own material as well as this. We have to study this English communication skill. This is your block one. You can see yourself. This is what we have to complete today. But I always say you that you have to come. You have to prepare yourself, and then you have to ask the questions. But it is unfortunate that you didn't study at your home. Otherwise, we have to do only the counseling now. Okay. What is communication? Hello, dear students. What is meant by communication? Be quick. Be quick. What is meant by communication? Hello. Is the slide visible? Hello. Please reply. Hello. Is the slide visible? Hello. Okay. What is meant by communication? Can anybody among you say me what is meant by communication? Because you are in the BG classes, you should be aware about what is communication. किसे कहते हैं हम? हाँ, communication बहुत easy है. Yes. Okay. हम ये कह सकेंगे कि communication is the means by which we express our ideas, by which we express our thoughts, by which we express our emotions, by which we express our feelings. Is it clear to you? Is it clear to you? Hello. Okay. Now there are some definitions of the communication. You can see here yourself. You can take it a screenshot also. What is communication? Communication is the process of exchanging ideas, thoughts, information, knowledge, etc. This is one definition between sender and receiver through acceptable codes. ये एक definition है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे या फिर मैं आपके ग्रुप में भी सेंड करूंगा ये. और एक डेफिनेशन है एक्सपोर्ट डिक्शनरी से. कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन. ये एक्सपोर्ट डिक्शनरी की डेफिनेशन है. और बहुत सारे डेफिनेशन हैं यहाँ, आप खुद ही इनको रीड आउट करेंगे. हाँ. Define the term communication in your own.
अब तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम ये कह सकेंगे कि कम्युनिकेशन इज द मीन इज बाय विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, by which we express our feelings, by which we express our thoughts is called communication. अब आपको याद रखना है कि जो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये कैसे होती है, ये आपको यहाँ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स. इसमें स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट देयर आर टू पर्सन्स. पहले क्या होने चाहिए? हेलो. पहले कम्युनिकेशन के लिए क्या होने चाहिए? हेलो. ओके. कम अज कम टू पर्सन होने चाहिए. कम अज कम द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज कॉल्ड सेंडर. जो मतलब मैसेज सेंड करेगा, जो बोलेगा, वन हु स्पीक्स इज कॉल्ड सेंडर. एंड द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर. वन हु रिसीव्स वन हु लिसन्स इज कॉल्ड रिसीवर. नाउ हियर आर 6 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं. नंबर 1, आइडिएशन. सबसे पहले है आइडिया. आपको आ रहा है, जब आपको किसी के बारे में आइडिया आ रहा है तब आप फिर उसको स्पीक कर रहे हैं. हेलो. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. द फर्स्ट इज, हाँ हाँ, द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल इज टू हैव एन आइडिया विद द सेंडर. पहले आपको आइडिया होना चाहिए. हाँ. द सेंडर्स आइडिया इज टू बी सेंट टू द रिसीवर थ्रू द प्रॉपर चैनल. जब इसको the idea comes in the person and then he sends this idea to other persons but in proper channel. That means the first step is ideation. Then is encoding. What is meant by encoding? You have to remember that whatever you speak, that is actually a code. Whatever जो भी हम बोलते हैं वो कोड्स में हम बोलते हैं. यानी कि जो भी हम कोई बात करते हैं, एक्चुअली जो भी हम स्पीक करते हैं वो कोड होता है. मिसाल के लिए आपने देखा होगा बंगाली, बिहारी और बंगाली और कोई आदमी, अगर आप देखेंगे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. हेलो. हाँ. यानी कि अगर आप देखते हो कि वो आपस में बातें करते हैं बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम. हमें समझ नहीं आ रहा है. क्यों? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट देयर कोड्स. फॉर एग्जाम्पल, द सेम थिंग हैज सो मेनी कोड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. मिसाल के लिए पानी, वाटर, इन इंग्लिश वाटर, in Urdu pani, in Kashmiri aab, and the thing is same, but it has so many codes. We should be familiar with these codes. अगर हमें ये कोड्स मालूम है कि तब हम स्पीक कर सकेंगे, तब हम लिसन कर सकेंगे. अदरवाइज we can't speak or we can't hear, we can't listen. As I have given you the example of the Bihari. Is it clear to you? Hello. Please you can use. Okay. Now, these codes, which are special codes for the languages, I already told you that there are thousands of the languages. And now we have to decode these codes. As I already told you that on the basis of these codes, there are thousands of the languages. And now we have to decode these codes. That is encoding. The idea is converted into the message which can be transmitted. This step is also called encoding. Here the sender has to take care of the semblance signage to be used for encoding. यानी कि अब जो सेंडर है, अब उसको देखना है कि मुझे क्या क्या कहना है, क्योंकि जो रिसीवर है उसको वो मालूम होना चाहिए. Then there is channel. Now there is proper channel that by which channel he will say. The message is transmitted through proper channels or media. If the sender doesn't select the transmission mode correctly, there may be many changes or miscommunication. मिसाल के लिए आप कोई प्रॉपर चैनल इसको
मतलब कैसे भी कहेगा। मिसाल के लिए अगर कोई कमरे में होगा, वो स्पीक करेगा, बाहर से कोई होगा, क्या वो सुन पाएगा? इज ही एबल टू लिसन हिम? हेलो, यानी कि दैट मीन्स वी हैव टू मेक द प्रॉपर चैनल। यस, वन सेकंड। देन अनदर इज डिकोडिंग। अब उसने कोड किया है, प्रॉपर चैनल से इस्तेमाल किया है। अब जो लिसनर है, अब इसको डिकोड करना है। वट एवर इज सेड बाय द स्पीकर और द सेंडर, नाउ द लिसनर हैज टू डिकोड दैट। द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, यानी कि जो मैसेज अब सेंडर ने सेंड किए, दैट इज नाउ received by the receiver or the listener. Very good. The receiver has to understand the original idea. अब उसको उसका माने समझना है कि ये कहने वाला है, उसने क्या कहा है। What he has said. For this, the receiver will decode the message. Now he has to decode that. This setup is called, so this setup is called decoding. After that, अब उसने डिकोड किया है, अब वो फिर से, हाँ हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब किसी ने कोई मैसेज कही है, किसी ने कोई बात की है, अब मैंने कहा है, अब आपको डिकोड करना है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। फिर से अब मतलब अब आपने समझा, अब आप वापस मुझे जवाब देंगे, सर हमें समझ में नहीं आया है, हमें समझ में आया है। देन आई विल रिसीव दैट, बट यू विल से देन एट दैट टाइम आई एम द रिसीवर एंड यू आर द सेंडर, and in this way I will send the feedback. These are the very good, very good. This is the diagram. You can see that is source, message, encoding the message, channel, decoding, and receiver, and it is the cycle. The cycle goes on. Then there comes the feedback, and then there happens the same. यानी कि फिर से यही साइकिल ऐसे ही चल रहा है। वो वहां से कह रहा है, ये यहां से कह रहा है। यहां तक समझ में आया? हेलो, anybody any doubt? Anybody any doubt till this time? Okay, okay, okay. Please wait, please wait. Huh. Then there are levels of communication. Levels of communication. You have to remember them. They will be posed in the examination. Number one is extra personal. Extra means beyond. This level of communication occurs between humans and other species. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, स्पेशीज जो बाकी है, मिसाल के आपने देखा होगा, जो पैरट होता है, तोता होता है, उसके साथ भी इंसान कभी कभी उसको बातें सिखाता है, या किसी को कोई पेट एनिमल होता है उसके साथ भी। समझ आ रहा है? यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। इज इट क्लियर टू यू? हेलो, हाँ। अनदर इज इंट्रापर्सनल। इंट्रा मीन्स विद इन द ह्यूमन्स, इंट्रा। Another one is interpersonal. Interpersonal also means within the humans. मगर फर्क क्या है इंट्रा और इंटर, ये आपको याद रखना है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल। ये एक ही मतलब इंडिविजुअल, ये सोसाइटी में यहां नहीं होता है इंडिविजुअल के साथ, यानी कि लिमिटेड लोगों के साथ। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? हाँ। और एक है ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आकर्स विद इन एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको आपस में कोई बात होती है, कोई मीटिंग होती है। समझ आ रहा है? हेलो, हाँ। और एक है मास। मास मीन बहुत सारे लोग। मिसाल के लिए किसी जगह इज्तिमा होता है, किसी जगह कोई मतलब सेमिनार होता है, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, इसको मास कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग। यहां तक समझ में आया? हेलो,
हाँ, नाउ अनदर इज फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब कैसे ये फ्लो होता है ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, बाय फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आई मीन, मिसाल के लिए कभी कभी, मिसाल मैं आपका सर हूं, आप मेरे स्टूडेंट से, आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे मतलब अगर देखेंगे एज के लिहाज से भी और स्टेटस के लिहाज से भी आपसे थोड़ा बड़ा हूं, आपको मतलब जब आप मुझसे बात करेंगे आप कहेंगे, जैसे आप कह रहे हो यस सर, नो सर, अगर आप आपस में बात करेंगे वहां मतलब आप फॉर इनफॉर्मली बात करेंगे, मेरे साथ आप फॉर्मली तरीके में बात करेंगे। ये लेवल्स हमें देखने हैं, कभी कभी इक्वल लेवल होगी, कभी कभी हाई लेवल, कभी कभी लो लेवल। समझ आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब लेवल्स हमें देखने हैं, क्या है? एक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड का माने है मतलब मैं आपको कहूंगा या कोई बॉस अपने सर्वर को कहेगा। इज इट क्लियर टू यू? फ्रॉम हायर टू लो, कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर अथॉरिटी टू जूनियर अथॉरिटी। नहीं, आप इसको यहां कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यहां उसका स्पेसिफिक नेम है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल आर इंस्ट्रक्शन। हाँ, और एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन अपोज है डाउनवर्ड का, मतलब lower to upper. This is the flow opposite to downward communication. In this type, the flow रिक्वेस्ट, आप कहेंगे मतलब मुझे सर हम रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट ये है, आप कहेंगे सर हम पोलाइटली ये कह रहे हैं। समझ आ रहा है? हेलो। और एक है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में नहीं है इक्वल, आप आपस में बातें करेंगे, सेम लेवल स्टूडेंट्स और हम टीचर से आपस में बातें करेंगे, पीयर्स, फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? और एक है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, इसमें सब हो गए, टीचर्स भी हो गए, स्टूडेंट्स भी हो गए, हायर अथॉरिटी के लोग भी, लोअर अथॉरिटी के लोग भी, सब के सब। मिसाल के लिए कभी कोई मतलब मीटिंग होती है उसमें सब लोग होते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो। हाँ, और एक है गैप वाइन कम्युनिकेशन। ये भी क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन की तरफ ही है, यानी कि इसमें भी सब लोग होते हैं, मगर इसमें फर्क ये है ये इनफॉर्मल होता है, क्रॉस वाइज फॉर्मल होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट once again according to your examination point of view, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वहां हमें कुछ बैरियर्स मतलब रुकावट हम जिनको कहते हैं, रुकावट की, हाँ हाँ, रुकावट की वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मिसाल के लिए इससे पहले मैंने ज्वाइन किया, आपने कहा सर हम सुन नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क ठीक नहीं था। मिसाल के लिए कभी कभी आपको मेरा टोन समझ नहीं आ रहा है। मिसाल के लिए हमें कभी कभी, मैंने आपको अभी कहा है एग्जांपल दिए, बंगाली और बिहारी वो आपस में बातें करते हैं, वो भी इंसान ही है मगर हमें समझ नहीं आ रहा है, यानी कि इनको हम कह रहे हैं बैरियर्स, रुकावटें। नंबर वन, सिमेटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर, जो आपको मालूम है मिसाल के लैंग्वेज, लैंग्वेज तो मैंने आपको कहा है कि थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो बहुत सारे लैंग्वेजेस स्पीक कर रहा है। मिसाल के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी है, मिसाल के लिए बंगाली या बिहारी वो आपस में बातें करते हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, दैट मीन्स सिमेटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। समझ में आ रहा है? हेलो। अनदर इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का माने लैंग्वेज तो सेम है मगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, मिसाल के लिए नॉइज है, डिस्टर्बेंस है, आप वहां में यहाँ हो आप सुन नहीं पा रहे हो, फिजिकली डिस्कम्फर्ट है, कोई एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। समझ आ रहा है? हेलो। हाँ, हाँ। और एक है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का माने है
मिसाल के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जो स्पीकर होता है वो मैसेज कह रहा है, मगर लिसनर जो होता है, जो रिसीवर होता है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसका कहने का मतलब क्या है। जो स्पीकर होता है उसको खुद ही लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है। मतलब आपको देखा होगा कि जब सेमिनार्स होते हैं वहां बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की वजह से हमें उसकी समझ आ रहा है। इसी तरह है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का माने होता है, मिसाल के लिए कभी कभी हम आपस में बातें करते हैं, किसी बंदे के साथ बातें करते हैं और उसको परेशानी होती है, उसको मालूम नहीं होता है कि उसने मुझे क्या कहा है। कोई एंग्जाइटी होती है, इसको कोई स्ट्रेस होता है या लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है। समझ में आ रहा है? हेलो। इसी तरह है और एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मिसाल के लिए ऑर्गेनाइजेशन है कोई, वहां आपको मालूम है वहां बॉस होता है और इसी तरह बाकी लोग होते हैं। मिसाल के लिए जो बॉस है वो बाकी लोगों को नहीं कह रहा है, ही डिडंट से अदर पीपल। इसी तरह मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का माने ये कि मिसाल के लिए चैनल ठीक नहीं है, मैंने कहा है आपको समझ में नहीं आया है। टेक्नोलॉजी जो हमें इससे पहले हुआ था, मेरे मैं कह रहा था आप सुन नहीं पा रही थी। टेक्नोलॉजी फेलियर। इसी तरह सोशल कल्चरल बैरियर। सोशल कल्चरल बैरियर का माने ये है कि जो सोसाइटी के कोड्स है या नॉर्म्स है, कभी कभी उनकी वजह से हम बात नहीं कर सकते। मिसाल के लिए कभी कभी आपके दिल में कुछ होता है, मगर सोसाइटी में नॉर्म्स है कि आप उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट ड्यू टू द नॉर्म्स एंड कोड्स ऑफ द सोसाइटी। इज इट क्लियर टू यू? हेलो। एनी डाउट टिल दिस टाइम? Any doubt, please? Because I always say you that this is whatever, this is counseling. Here you have to pose the questions. By posing the questions, you will be able to understand. Any question, any doubt?